So, hello students. Now in this class, we are going to discuss the very important, last but not the least topic of this chapter, that is scope of statistics. Okay, we are going to discuss the scope of statistics. Basically, what is the meaning of scope? That the extent of any subject that it is dealing with. Okay, the main part, the main extension of this subject कि इसमें आप क्या क्या अब स्टडी करने वाले हैं, जो मेन चीज है जो इस चैप्टर में इंक्लूडेड है, that is included in the scope of statistics. There are 3 points. First one is nature of statistics, second one is subject matter of statistics, and third one is limitations of statistics. Okay, now coming to the scope, students. Scope means that everything in the statistics revolves around this. Okay, statistics deals with this thing, so we will study one by one. If the question asks you that what is the scope of statistics, then you will write that there are 3 points: nature of statistics, subject matter of statistics, and limitations of statistics. Clear? Coming to the nature of statistics, what is the meaning of nature, students? Just like we can say, nature refers to the behavior. Just like human beings have the behavior, okay, such like that, statistics also behaves like something. Okay, so statistics nature is like science and as an art. Okay, statistics behaves like science and as an art. Why we are saying that statistics is like a science? As we know, students, that in science, what is done? Everything is arranged in a systematic manner and everything is based upon the scientific inquiry. Okay, just like that, statistics में भी तो हमने यही पढ़ा है, चैप्टर 1 और 2 में अभी तक हम पढ़ रहे हैं, that in statistics everything is arranged in the systematic manner. Firstly, we used to collect the data, then we present it, then analyze it, then we made the conclusion. Okay, so everything क्या है, हर चीज बहुत सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज है, जिसकी वजह से हम साइंस और स्टैट्स को कंपेयर कर सकते हैं. In science also everything is based upon the collection and properly arranging the data, and everything is in system. Okay, so just like that, in systematic manner and in science everything is based upon scientific inquiry. Scientific means everything is based upon experiment and observation. स्टैट्स में भी हम यही करते हैं, सारे डेटा को क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, उस डेटा को ऑब्जर्व करके क्या निकाला जाता है, कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं. So we can compare or we can say that the behavior of stats is like science. Okay, as it presents all the data in systematic and scientific manner. Okay, coming to the next nature, that is as an art. What is art? Basically, it refers to the skills or skillfully applying some creativity and to connect the real positions with through the art. ठीक है, आर्ट में हम क्या, अगर हम पेंटिंग बना रहे हैं तो आर्ट मतलब कि बिल्कुल ऐसी ओरिजिनलिटी दिखा देना कि आप एक पेंटिंग बना रहे हो, उस पेंटिंग को देख के ऐसा लगे. एक क्रिएटिविटी, एक आर्टिस्ट उसे कहा जाता है जो अपनी पेंटिंग से ही सब कुछ समझा देता है कि मैं अपनी पेंटिंग के थ्रू सामने वाले को क्या समझाना चाह रहा हूँ. Is it clear? Just like that, stats also relate the data with real life situations. What is actually happening in the country? कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, और वी कैन से राइजिंग पॉपुलेशन. ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स. स्टैट्स क्या करता है, इन सारी प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर देता है डेटा की फॉर्म में, जिससे कि हम उस डेटा को रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर सके. इज इट क्लियर? सो दैट इन दिस वे वी कैन से दैट स्टैट्स इज ऑल्सो एन art. So what is the nature of statistics, students? Statistics is science as well as it is an art. It is science because it, just like science, it presents the data in systematic and in scientific manner. Everything in statistics is collected, presented and analyzed systematically, and conclusions are made upon the observations and deep observations, we can say, as we do in science. ठीक है? Art, we call it art because it relates the data with real life situations. Just like art relates the picture with the real life situation, stats also try to connect
all the real situations problems with the help of data. कोई भी प्रॉब्लम है अगर वो पॉसिबल है तो वो उसको डेटा में कन्वर्ट करके उस रियल लाइफ सिचुएशन को डेटा के साथ डेटा की फॉर्म में प्रेजेंट करता है. इज इट क्लियर? कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Basically, students, you should understand that statistics is divided into two categories. There is mathematical statistics and applied statistics. What is mathematical statistics? Which is related to the mathematics and which deals with the derivation of the formula. Okay? कोई भी फॉर्मूला है उसको कैसे डराइव करना है, डराइव कैसे हुआ, या फिर नए नए फॉर्मूलेट को डराइव करना, एग्जैक्टली फॉर्मुलेट करना कि आप नए नए फॉर्मूला को कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हो. बट व्हाट इज अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट? इन विच वी यूज टू अप्लाई द फॉर्मूला. हम फॉर्मूलाज को डराइव नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो डराइव्ड फॉर्मूलाज हैं हम उन्हें क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर मैं फॉर्मूले को डराइव कर रही हूँ कि मीन को अलग अलग तरीके से किस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है. मीन के हम बेसिकली 2-3 फॉर्मूले पढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. लेकिन अगर मैं इसके अलावा एक और फॉर्मूले को डराइव करूं कि और क्या फॉर्मूला बन सकता है जिससे हम एवरेज निकाल सके, दैट इज मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स. बट जो फॉर्मूले डराइव हो चुके हैं उनको अप्लाई करना, क्लास में जाकर क्वेश्चन से अप्लाई करना, क्लास में अप्लाई करना, दैट इज नोन एज applied statistics, in which we don't use to derive the formulas but we use to apply the formulas. Are you getting my point? So then applied statistics is also divided into two categories. Mathematical statistics हमारी स्टडी का भी पार्ट नहीं है, हम applied statistics पढ़ रहे हैं जिसको हमने बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. Now here it is written descriptive statistics and inferential statistics. Okay, please listen it carefully. What is descriptive? Descriptive के नाम से समझ में आ रहा है something which describes the data. So the statistics deals with which describes the data which is available with you. If you are describing the data, if you are reading such data, collecting the data, presenting the data, then analyzing the data and describing the features of the data in any manner, that is known as that is a part of descriptive statistics. For example, मैंने क्लास में जाके एक क्लास के इकोनॉमिक्स के मार्क्स की एक लिस्ट बनाई, आप ही की क्लास की एक लिस्ट बनाई इकोनॉमिक्स की, इसमें पूरे 50 स्टूडेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल हर एक स्टूडेंट के मार्क्स लिखे उसमें. फिर उसमें पहले मैंने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको प्रेजेंट ऑर्गेनाइज कर दिया एक टेबुलर शीट में. उसके बाद मैंने उसको फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट भी किया, ठीक है, ग्राफ बना दिया है, और फिर मैंने उसको एनालाइज किया कि कितने स्टूडेंट बिलो 90 हैं, कितने अबव 90 हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 स्कोर किया है. इज इट क्लियर? सो व्हाट आई एम डूइंग, बेसिकली आई एम डिस्क्राइबिंग द डेटा, आई एम गेटिंग द फीचर्स ऑफ द डेटा. ओके, सो दैट इज डिस्क्राइबिंग. ओके, डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स. व्हाट इज इन्फ्रेंशियल इकोनॉमिक्स? Inferential word has came from infer word. Infer करना. What is infer? Making assumptions or making conclusions, drawing conclusions on the basis of the data available with you. ठीक है? It is written drawing conclusions based on the sample. Sometimes it happens that when the data is too large, when the population is too large, अभी मैं यहाँ पे एक word use कर रही हूँ population और universe student. What is population? वैसे हम बात करते हैं किसी भी कंट्री की जो हमारे लोग हैं रहने वाले उनके सम टोटल को पॉपुलेशन बोलते हैं. बट इन स्टैटिस्टिक्स व्हाट इज पॉपुलेशन और यूनिवर्स, दोनों का मीनिंग सेम है. द डेटा विच वी आर स्टडिंग, द सम टोटल ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ दैट डेटा इज नोन एज पॉपुलेशन और यूनिवर्स. इज इट क्लियर टू यू? फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स की इकोनॉमिक्स के मार्क्स अगर मुझे कलेक्ट करने हैं तो जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास में वो क्या हो गए, नंबर ऑफ यूनिट्स, उनके सम टोटल को, इट मींस 50 इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, और उसी को हम स्टैट्स में क्या बोलते हैं, यूनिवर्स. ओके, सो द सम टोटल ऑफ यूनिट्स रिलेटेड टू एनी डेटा इज नोन एज पॉपुलेशन और यूनिवर्स इन स्टैट्स, जिसकी हम अब स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो अब आपने जो कई बार क्या होता है बहुत बड़ा अगर डेटा है तो उसमें से कुछ सैंपल ले लिया जाता है.
जब आप सैंपल लेकर उसके अलग अलग इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करके उसके फीचर्स डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। बट उसी सैंपल के बेसिस पर जो आपने स्टडी की है उससे कुछ कंक्लूजन निकाल लेना ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए, दैट इज नोन एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। छोटे से डेटा के बेस पर, सैंपल के बेस पर एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए इंफर कर लेना, कंक्लूजन निकाल लेना, ऑब्जर्व कर लेना, और वी कैन से प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, दैट इज नोन एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो ट्रेन, ओके, so in that metro train there are 500 passengers who are traveling in that metro train at the same point of time। आपके माइंड में एक आइडिया आया, मुझे ये सेलेक्ट करना है कि इस मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल करने वाले कितने लोगों ने ब्रांडेड वॉचेस पहनी हुई है। ठीक है, वॉच सभी के हाथ में आप देख रहे हो, आप ये देखना चाहते हो ब्रांडेड किसने पहनी हुई है। तो आपको पता है भाई पूरी ट्रेन में तो 500 है, मैं कब तक डेटा कलेक्ट करूंगा। तो आपने क्या किया, you have selected the number of, you have selected some passengers। how many passengers? for example 50 passengers you have selected। तो आपने उन सबकी वॉचेस का डेटा कलेक्ट किया इंडिविजुअली, अपने पास नोट किया, उसे एक ऑर्गेनाइज किया, उसकी एक टेबल बनाई और उसे एनालाइज किया। एनालाइज करने पे आपको पता चला, आपने डेटा कैसे प्रेजेंट किया कि इसके पास इस ब्रांड की है, इसके पास इस ब्रांड की, आपने पूरी एक लिस्ट बना ली। उसके बाद आप उस डेटा को एनालाइज कर रहे हो। एनालाइज करने पे आपको ये पता चलता है कि फॉर एग्जांपल 1 in 2 पीपल आर वेयरिंग ब्रांडेड वॉचेस, मतलब हर दूसरे इंसान के पास, ठीक है, हर दूसरे इंसान के पास ब्रांडेड वॉच है। आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, बट कंक्लूजन किसका ड्रॉ कर लिया आपने? बेस्ड अपॉन दैट सैंपल ओनली, उस सैंपल का डेटा। लेकिन अगर आप उसी सैंपल के डेटा के बेस पर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बेस पर ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, इंफर कर लेते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए कि मेट्रो में ट्रेवल करने वाले हर पीपल के पास, हर दूसरे इंसान के पास ब्रांडेड वॉच होती है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जो आपने सैंपल लिया था उस सैंपल के बेस पर आपने क्या ड्रॉ किया? कंक्लूजन। और कंक्लूजन किसके लिए ड्रॉ किया? फॉर द होल पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, सिर्फ एक लिमिटेड सैंपल की स्टडी करना, ठीक है, एक लिमिटेड रहना, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। बट एक लिमिटेड सैंपल के बेस पर उस रिजल्ट को जनरलाइज कर देना पूरी पॉपुलेशन के साथ, ठीक है, जिससे आप एक जिसमें आप एक कंक्लूजन निकाल देते हो, प्रोबेबिलिटी लगा देते हो कि मेट्रो में ट्रेवल करने वाले हर पर्सन के पास ब्रांडेड वॉच होती है। एग्जैक्टली यू आर नॉट श्योर बट यू आर इंफरिंग, मतलब आप इंफर कर रहे हो, आप एज्यूम कर रहे हो, कंक्लूजन निकाल रहे हो, दैट इज इंफरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। Now students, coming to the third point, that is limitations of statistics, disadvantages. As we know that each coin has two sides, head and tail. Just like that, every topic has some merits and demerits. We have already studied the importance of statistics. Now we are moving towards the disadvantages, demerits or limitations of statistics. First one is, it does not study qualitative phenomena. What is this point saying? that statistics की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव डेटा को कंसिडर नहीं करता। क्वालिटेटिव फिनोमिना, क्वालिटेटिव फैक्ट, क्वालिटेटिव डेटा का स्टडी नहीं करता। इट मीन्स एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट स्टैटिस्टिक्स इज दैट और द डेटा विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स कैन ओनली बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अगर किसी की क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी ऑफ अ पर्सन, इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, ब्यूटी ऑफ द पर्सन, हाइट इज टॉलर और शॉर्टर, इस टाइप के डेटा को क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं और ये इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स कंसिडर नहीं करता। ओके, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट डील्स विद इंडिविजुअल्स। इट मींस स्टैटिस्टिक्स इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। नंबर्स के एग्रीगेट को या एवरेज को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, ना कि एक सिंगल नंबर को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी डेटा की इंडिविजुअल नंबर है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, दैट इज ओनली डेटा। अगर आपको उसको स्टैटिस्टिक्स बनाना है तो यू शुड हैव सम
एवरेज और एग्रीगेट, टोटल होना चाहिए आपके पास। कमिंग टू द थर्ड लिमिटेशन, इट कैन बी मिसयूज। स्टैटिस्टिक्स को मिसयूज किया जा सकता है, मतलब अगर स्टैटिस्टिकल डेटा को किसी रॉन्गली पर्सन के थ्रू या फिर रॉन्गली मोटिवेटेड पीपल के थ्रू यूज किया जाए तो इट कैन, he or she can misuse the data and he can make the conclusions as he likes। अगर मेरे पास किसी, अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है, मार्क्स की तो वो डेटा है, लेकिन अगर वो पर्सन की कुछ थिंकिंग गलत है या उसके मन में कोई बायसनेस है तो वो नंबर्स को चेंज भी कर सकता है। तो जब नंबर चेंज होगा तो कंक्लूजन्स भी वो जैसे चाहेगा वैसे ही निकल के आएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स को यूज करना, मिसयूज करना लोगों के हाथ में होता है। स्टैटिस्टिक्स गलत नहीं होती, स्टैटिस्टिक्स को यूज करने वाले लोगों पे डिपेंड करता है कि वो उसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, coming to the fourth limitation, results are true only on average। It means we can say that only results are true only on average। अब यहाँ पे एक स्टोरी समझिएगा स्टूडेंट, that there was a family, it consists of 4 members, one father, mother and 2 children। When they were going somewhere, they used to cross the river। एक रास्ते में ऐसा आया कि उन्हें एक रिवर को क्रॉस करना था। ठीक है, तो वहां पे बोर्ड लगा हुआ था that लिखा हुआ था। फादर ने क्या किया, अपनी सभी चारों मेंबर्स की हाइट देखी कि सभी की हाइट 5 से तो ऊपर है, तो इसका मतलब हम इस रिवर को आसानी से क्रॉस कर लेंगे। जैसे ही वो चारों रिवर में उन्होंने जंप किया तो क्या हुआ, दे ऑल ड्रॉन इन द रिवर, सारे डूब गए। ऐसा क्यों हुआ? मैम अभी तो आपने कहा था उसकी हाइट 5 फीट थी और फैमिली मेंबर्स सारे 5 फीट से ऊपर थे, उन्हें स्विमिंग नहीं आती। तो हम, अगर स्विमिंग हमें नहीं भी आती है तो हम डूबेंगे नहीं, क्योंकि हमारी हाइट रिवर की गहराई से ज्यादा है। पर वो फिर भी क्यों डूब गए? बिकॉज स्टूडेंट दैट हाइट वॉज रिटन ऑन एन एवरेज। तो एवरेज जो था वो ये था कि एवरेज हाइट 5 फीट है, कहीं कहीं 10 भी हो सकती है बीच में, कहीं 4 भी हो सकती है, कहीं 12 भी हो सकती है, ऑन एन एवरेज 5 है। तो जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो ऑन एन एवरेज ट्रू हो सकता है। अगर आप उसे इंडिविजुअली लेके चलोगे, एक एक यूनिट के लिए सही मान के चलोगे, देन द रिजल्ट विल नॉट बी ट्रू। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम। कि एग्जाम के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है कि स्टैटिस्टिक्स कॉमन सेंस से कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करता। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स और कॉमन सेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में कितनी बार ऐसे कंक्लूजन आते हैं हमारे पास कि जिन्हें हम इंडिविजुअली अप्लाई करने लगे तो शायद वो कहीं भी ट्रू नहीं बैठेंगे। अगर आप उन्हें एवरेज से कंपेयर करोगे देन ओनली दे कैन बी कंसिडर्ड एज can make the best possible use of stats। It means सिर्फ experts ही stats का best possible use कर सकते हैं। जिस पर्सन को स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करना या फिर अप्लाई करना नहीं आता है, हाउ टू डील विद द नंबर्स, दे कैन ड्रॉ रॉन्ग कंक्लूजन। ओके, स्टैटिस्टिकल डेटा यूजफुल है, लेकिन अगर वो एक गलत हाथों में चला जाए जिससे उसकी नॉलेज नहीं है, डेटा के साथ हैंडलिंग करनी नहीं आती है, देन इन दैट केस they can make wrong conclusions। तो इसको स्टैटिस्टिक्स को डील करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। एक डिजिट भी इधर उधर हो जाती है, एक मेथड भी गलत अप्लाई हो जाता है, तो होल कंक्लूजन कैन बी रॉन्ग। कमिंग टू द सिक्स्थ लिमिटेशन, laws are not exact। Students, as we have discussed that statistics is science, but its laws are not just exact as science। Statistical laws are not universally applicable and the results which are drawn on the basis of statistical data are also not universally true। साइंस के जितने भी लॉज हैं, जितने भी रिजल्ट हैं, वो हर जगह अप्लाई हो सकते हैं। रिजल्ट जो निकल के आते हैं वो हर जगह सेम और ट्रू होते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल डेटा के जो लॉज हैं वो प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर होते हैं। एवरेज है तो ठीक हो भी सकता है, इंडिविजुअल पे आ जाए तो सारे भी गलत हो सकते हैं। तो इन दैट केस लॉ जो है स्टैटिस्टिक्स के, दे आर नॉट एग्जैक्ट। इट कैन बी ट्रू एंड इट कैन बी फॉल्स।
Coming to the students' last limitation of statistics, that is, data should be uniform and homogeneous. Homogeneous का मीनिंग सभी को पता होगा. व्हाट इज होमोजीनियस? इट मीन्स सेम. ओके, तो डेटा कैसा होना चाहिए? सेम. अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो डेटा स्टैटिस्टिक्स हमेशा कैसे डेटा के साथ डील करता है? यूनिफॉर्म और होमोजीनियस. इफ योर डेटा इज हेट्रोजीनियस, इट मीन्स इट इज डिफरेंट, then it makes no sense in statistics, because in statistics we need to compare the data so that we can make conclusions. और कंपेयर करने के लिए डेटा हमेशा सेम होना चाहिए. सेम इन द सेंस, आप क्वांटिटी ऑफ मिल्क को क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ विल बी मेजर्ड इन मीटर्स, सेंटीमीटर्स, इंचेस, बट द क्वालिटी ऑफ मिल्क विल बी मेजर्ड इन लीटर्स, मिलीलीटर्स एंड इन डिफरेंट यूनिट्स. So these units are not comparable. सबसे बड़ी लिमिटेशन है, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में डेटा चाहिए तो डेटा सेम होना चाहिए. द यूनिट शुड बी सेम so that we can easily compare the data. I hope the meaning is clear to you. So with this we have completed the scope of statistics.